السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے حضرت امام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام احمد رضا بریلوی 10 شوال 1272 ہجری 14 جون 1856 بروز ہفتہ بریلی شریف یعنی کہ بھارت میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی مولانا شاہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور میں ہندوستان کے عالم دین اور معروف مفتی تھے۔ علوم ظاہری میں آپ کا کوئی نظیر نہیں تھا اور باطنی فہم و فراست کا یہ عالم تھا کہ جو زبان اقدس سے فرما دیتے وہی سامنے آتا۔ اللہ کریم نے آپ کے بلند نگاہ پر سب کچھ روشن فرما دیا تھا۔ آپ نے ایک عجیب خواب دیکھا اور اگلے ہی روز اپنے والد ماجد حضرت مولانا شاہ رضا علی خان قدسی سے خواب بیان کیا، جس کی تعبیر میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ خواب مبارک ہے، بشارت ہو کہ پروردگار عالم تمہاری پشت سے ایک ایسا صالحہ فرزند پیدا کرے گا جو علوم کے دریا بہا دے گا اور اس کی شہرت مشرق اور مغرب میں پھیلے گی۔ جب امام احمد رضا خان بریلوی پیدا ہوئے تو آپ کے جد امجد حضرت مولانا شاہ رضا علی خان جو کہ تقوی و طہارت اور علم و فضل میں ایک ممتاز مقام رکھتے تھے، نے گود میں اٹھایا، پیار کیا اور فرمایا میرا یہ بیٹا بہت بڑا عالم ہوگا، اس کے چشمہ عرفان سے ایک دنیا سیراب ہوگی۔ آپ کا اسم گرامی محمد رکھا گیا۔ آپ کے جد امجد حضرت مولانا شاہ رضا علی خان نے احمد رضا تجویز فرمایا۔ آپ نے خود اپنے نام کے ساتھ عبد المصطفیٰ کا اضافہ فرمایا۔ اپنے نعتیہ دیوان میں فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا، ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ آپ کا تاریخی نام المختار ہے۔ المختار سے آپ کی ولادت کا سن ہجری 1272 ہجری نکلتا ہے۔ آپ نے خود اپنا سن ولادت حسب ذیل آیت کریمہ سے نکالا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ امام احمد رضا بریلوی نسبتاً پٹھان، مسلکاً حنفی، قادری اور بریلوی تھے۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ اس طرح ہے: عبد المصطفیٰ احمد رضا خان ابن حضرت مولانا شاہ نقی علی خان ابن حضرت مولانا رضا علی خان ابن مولانا محمد کاظم علی خان وغیرہ وغیرہ۔ حضرت محمد سعادت یار خان ابن حضرت سعید اللہ خان رحیم اللہ وغیرہ۔ آپ کے آباء و اجداد قندھار کے معزز قبیلے کے پٹھان تھے۔ وہ سلاطین مغلیہ کے دور میں لاہور آئے اور معزز عہدوں پر فائز رہے۔ لاہور کا شیش محل انہی کی جگہ تھا، پھر وہاں سے دلی منتقل ہو گئے اور اہم عہدوں پر فائز رہے۔ چنانچہ حضرت محمد سعید اللہ خان صاحب کا منصب شش ہزاری تھا اور شجاعت جنگ آپ کا خطاب تھا۔ ان کے صاحبزادے سعادت بار خان صاحب کو حکومت کی طرف سے ایک مہم سر کرنے کے لیے بریلوی بھیجا گیا۔ فتح یابی پر ان کو بریلی کا صوبہ بنانے کے لیے شاہی فرمان آیا، لیکن وہ ایسے وقت آیا جب آپ بستر مرگ پر تھے۔ حضرت مولانا محمد کاظم علی خان حکومت کے ممتاز عہدوں پر فائز رہے۔ آپ صاحب کرامت بزرگ تھے۔ قطب الوقت حضرت مولانا شاہ رضا علی خان 1224 میں پیدا ہوئے اور شہر راجستھان میں مولانا خلیل الرحمان صاحب مرحوم سے علوم درسیہ حاصل کر کے 23 سال کی عمر میں 1247 کو سند فراغ حاصل کی۔ آپ کی خدا داد علم و فضل کی شہرت اطراف و زمان میں ہوئی، خصوصاً فقہ و تصوف میں کامل مہارت حاصل فرمائی۔ بہت پراسرار وعظ فرماتے تھے۔ آپ کے اوصاف شمار سے باہر ہیں، خصوصاً فصاحت کلام، زہد و قرات، سلام کی سبقت، علم و تواضع، تجرید و تفرید کو آپ کی خصوصیات میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ تاج العلماء، حامی و سنت، ماہی بدعت حضرت مولانا شاہ نقی علی خان 1246 میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنے والد محترم سے علوم دینیہ حاصل کی۔ علوم و فنون میں کامل مہارت حاصل تھی۔ باطنی فہم و فراست کی یہ حالت تھی کہ جس معاملے میں جو کچھ فرما دیتے وہی ظہور میں آتا۔ زہد و تقوی، علم و فضل، سخاوت و شجاعت، جلال میں اپنی مثال آپ تھے۔
अय्याम तफूलियत में ही आपकी पेशानी पर सआदत के आसार नुमायां थे, और हकीकत में निगाहें देख रही थी कि जो बच्चा इब्तदा ही इतना होनहार और अर्जमंद है, इल्म फजल का आफताब बनकर चमकेगा। आपके बचपन का वाक़या है कि बरेली शरीफ की एक मस्जिद में मजसूब बशीरुद्दीन साहब रहा करते थे। जो शख्स उनके पास जाता उसे बुरा भला कहते। फाजले बरेलवी को मुलाकात का शौक़ पैदा हुआ। एक दफ़ा आप उनके पास चले गए और जाकर फर्श पर बैठ गए। वो 15-20 मिनट तो गौर से देखते रहे और फिर कहने लगे कि तुम रज़ा अली खान साहब के कौन हो? आपने फरमाया मैं उनका पोता हूँ। ये सुनकर उन्होंने फरमाया जबी, फिर फ़ौरन उठे और चारपाई की तरफ इशारा करके फरमाया यहाँ तशरीफ़ रखिए। शायर इस्लाम की हिफाजत व पासबानी की जो रवायात आपकी तारीख से वाबस्ता हैं, उनका आगाज़ भी बचपन ही से हो चुका था। एक दिन उस्ताद इकराम में बच्चों को पढ़ा रहे थे कि एक बच्चे ने आकर सलाम किया। उस्ताद ने जवाब में कहा जीती रहो। उस पर हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाजल बरेलवी ने फरमाया ये तो जवाब न हुआ, वालेकुम सलाम कहना चाहिए था। आपके इस जज्बा इजहार हक पर आपके उस्ताद बहुत खुश हुए और बहुत दुआएं दी। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना था। फाजले बरेली के पहले रोज़े के इफ्तार की तकरीब मनाई जा रही थी। खासी गर्मी पड़ रही थी कि वालिद मोहतरम आपको साथ लेकर एक कमरे में तशरीफ़ ले गए, जहाँ फिरनी के प्याले चुने हुए थे। हज़रत खालिद माजिद ने फरमाया लो खा लो। आपने अर्ज़ की मेरा तो रोज़ा है, कैसे खा लूँ? वालिद माजिद ने फरमाया बच्चों का रोज़ा ऐसा ही होता है, मैंने किवाड़ बंद कर दिए, कोई देखने वाला नहीं, किसी को खबर ना होगी, चुपके से खा लो। आप जवाब देते हैं जिसके हुक्म से रोज़ा रखा है वो तो देख रहा है ना। ये सुनते ही हज़रत वालिद माजिद की आंखों से आंसू छलक पड़े। कमरा खोलकर आपको बाहर ले आए। बचपन ही से हद दर्जा ज़की और ज़ीरक थे। नेकी और दुआ और इस्तग़फ़ार की तरफ भी इसी दौर से लगाव हो चुका था। इब्तदाई तालीम बिस्मिल्लाह ख़वानी की तारीख़ मालूम न हुई, ताहम बिस्मिल्लाह ख़वानी की तकरीब में एक अजीब वाक़या पेश आया। आपके उस्ताद मोहतरम ने हस्बे कायदा आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ बा ता सा पढ़ाया तो आप पढ़ते चले गए। जब लाम मीम अलिफ लाम की बारी आई तो आप खामोश हो गए। उस्ताद ने दोबारा पढ़ने के लिए कहा तो आप फिर भी खामोश रहे। फिर बल्कि फरमाया कि दोनों लफ्ज़ तो इससे पहले पढ़े जा चुके हैं। इस वक्त आपके जद अमजद हज़रत मौलाना रज़ा अली खान भी मौजूद थे। उन्होंने फरमाया बेटा उस्ताद का कहा मानो। चुनांचे आपने जद अमजद के हुक्म की तामीर की, लेकिन आप अपने दादा के चेहरे अनवर की तरफ सर उठाकर देखा। हज़रत ने फरासत ईमानी से समझ लिया कि बच्चे को शुबा हो रहा है। ये हरूफ का मफरूदा का बयान है, इसमें ला हरफ मुरक्कब कैसे आएगा? हज़रत ने आपकी अर्जमंदी की पेश नज़र फरमाया कि अलीफ चूँकि साकिन होता है और साकिन के साथ इब्तदा मुश्किल होती है, इसलिए उसे दूसरे हरफ लाम के साथ मिलाकर लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। शुरू में जो तुमने पढ़ा है वो दर हकीकत हमज़ा है, अलिफ नहीं। आपने फिर सवाल किया कि अगर अलिफ को किसी और हरफ के साथ मिलाना ही था तो दाल या सीन के साथ मिला दिया जाता, इतनी दूर लाम के साथ मिलाने की क्या वजह है? हज़रत जद्दी अमजद ने फतेह मोहब्बत से आपको सीने से लगा लिया और फरमाया कि लाम और अलिफ सूरत लिखने में लाम बज़ाहिर एक जैसे होते हैं और सीरत में भी उनमें ख़ास मुनासबत है। चनाचे लाम अलिफ मीम का दरमियानी हरफ अलिफ है और अलिफ लाम फे का दरमियानी हरफ लाम है। इस मुशाबहत और मुनासबत की वजह से दोनों को मिलाकर लिखा जाता है। एक दफ़ा आपके उस्ताद ग्रामी कुरान मजीद की एक आयत करीमा पढ़ा रहे थे। वो बार बार ज़बर पढ़ाते मगर फाजले बरेलवी ज़ेर ही पढ़ रहे थे। आपके जद अमजद मौलाना रज़ा अली खान देख रहे थे। आपने बुलाकर कुरान मजीद लिखा तो वाकई कातिब ने गलती से ज़ेर की बजाय ज़बर लिख दी थी। आपने फरमाया जिस तरह उस्ताद साहब कहते थे इस तरह क्यों नहीं पढ़ते थे? फाजले बरेलवी ने अर्ज़ की मैं चाहता था कि इसी तरह पढ़ूँ मगर ज़बान पर काबू न था। जद अमजद ने फरमाया
तो तबस्सुम फरमा कर सर पर हाथ फेरा और दुआएं दी। उस्ताद साहब से फरमाया बच्चा सही पढ़ रहा था, दरअसल कातिब ने गलत लिख दिया था और खुद अपने दस्ते अक़दस से तस्हीह फरमा दी। बच्चों को तालीम की तरफ इतनी तवज्जो नहीं होती, बल्कि आम तौर पर खेल कूद पर ज़्यादा खुश होते हैं। मगर फाज़िल बरेलवी उसके बरक्स बड़े ज़ौक़ शौक़ से पढ़ने के लिए जाते हैं, हत्ता कि जुमे के दिन भी पढ़ने के लिए जाना चाहते थे। लेकिन वालिद गिरामी के समझाने से रुक गए और समझ गए कि यह दिन बहुत अहमियत रखता है, इसलिए किसके अलावा 6 दिनों में पढ़ना चाहिए। आपने इब्तदाई तालीम अपने वालिद माजिद हज़रत मौलाना शाह नकी अली खां से हासिल की। 4 साल की उम्र में आपने कुरान मजीद नाजरा ख़त्म कर लिया। 6 साल के थे एक बहुत बड़े मजमे के सामने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर मुदल्लिल तकरीर फरमाई। नहाए दिल नशीन अंदाज में मिलाद शरीफ का बयान सुनकर सामईन सख्त मुतअज्जब हुए। आपने सरफ नाव की इब्तदाई तालीम मौलाना गुलाम कादर बेग से हासिल की। एक दफ़ा आप किसी काम के लिए रामपुर तशरीफ़ ले गए। वहाँ इल्मे है हाथ के मशहूर ज़माना फाजिल मौलाना अब्दुल अली रामपुरी से शराए के बाद सबाक पढ़े। वालिद माजिद ने फरमाया इसमें क्यों वक़्त सरफ करते हो, मुस्तफ़ा प्यारे की बारगाह ये अलूम तुमको खुद ही सिखा दिए जाएंगे। तकरीबन 21 अलूम फ़नून आपके वालिद माजिद हज़रत मौलाना शाह नकी अली खां से ही हासिल किए। 14 साल की उम्र में तमाम अलूम दरसिया माकूल और मनकूल की तकमील कर ली। 14 शबान को आपकी दस्तार बंदी हुई। इसी दिन आपने रज़ात के एक मसले का जवाब लिखा। सवाल ये था कि अगर औरत का दूध नाक के ज़रिए बच्चे के हलक में चढ़ गया तो क्या रज़ात साबित होगी। आपने जवाब में लिखा कि मुंह या नाक से औरत का दूध जो बच्चे के पेट में पहुंचेगा हुर्मत रज़ात लाएगा। वालिद माजिद ने जवाब देकर उसी दिन से फतवा नवीसी का काम उनके सुपुर्द कर दिया। जहानत का ये आलम था कि मदरसे में उस्ताद साहब से सबक पढ़ते तो 1-2 बार देख कर किताब बंद कर देते। उस्ताद साहब जब सबक सुनते तो लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुना देते। ये हालत देख कर उस्ताद साहब सख्त मुतअज्जब हुए। एक रोज़ कहने लगे अहमद रज़ा तुम आदमी हो या जिन, मुझको पढ़ाते देर लगती है, तुम्हें याद करते देर नहीं लगती। तज़किरा नूरी में खुदा की ये रवायत दर्ज है। बाद नवाकफ़ हजरात मेरे नाम के साथ हाफिज़ लिख देते हैं, हालांकि मैं हाफिज़ नहीं हूँ। हाँ ये ज़रूर है कि कोई हाफिज़ साहब कलाम पाक का रुकू मुझको सुना दें और फिर दोबारा सुन लें। एक रोज़ ख्याल आया कि लोग मुझे हाफिज़ कुरान समझते हैं और लिखते हैं, क्यों ना कुरान मुझे हिफ़्ज़ कर लूँ। चुनांचे 1 माह की कलील मुद्दत में कुरान हकीम हिफ़्ज़ कर लिया। रोज़ाना 1 पारा हिफ़्ज़ करने के बावजूद मामूलात में फ़र्क नहीं आने दिया। सैयद अयूब अली रिज़वी फरमाते हैं कि इमाम अहमद रज़ा एक मरतबा शदीद अलील हो गए। तबीबों ने मुकम्मल आराम करने का मशवरा दिया और काम काज से मना कर दिया। आपने वादा फरमाया, लेकिन जब कोई फतवा आता तो आप तलामज़ा से फरमाते कि फ़लाँ अलमारी में फ़लाँ किताब के फ़लाँ सफ़े की फ़लाँ सतर से फ़लाँ सतर तक इसका जवाब मौजूद है, उसे नकल कर दो। अगर कोई बावाज़ इब्रान कुरान में पढ़ रहा होता और आप की गलती करता और आप कितने ही मसरूफ़ क्यों ना होते, उसे फ़ौरन टोक देते और इस्लाह फरमा कर ये भी बता देते कि वो किस पारे के, किस रुकू के, किस आयत के, किस लफ्ज़ पर लग़ज़श का शिकार हो। मौलाना एहसान हुसैन साहब बयान करते हैं कि मैं फाज़िल बरेलवी की इब्तदाई तालीम अरबी में हम सबक हो रहा हूँ। शुरू से ही उनकी जहानत और ज़कावत का ये आलम था कि किताब का चौथाई हिस्सा उस्ताद से पढ़ते, बाकी हिस्सा खुद याद करके सुना देते। आपकी उम्र अभी 8 वर्ष की थी कि आपने नहव की मशहूर किताब हदायत उन नहव पर अरबी में शरह तहरीर फरमाई। फाज़िल बरेलवी तालिब इल्मी के ज़माने में असूल फ़िक़ह की मशहूर और मुश्किल तरीन किताब मुस्लिम सबूत का मुतालिया कर रहे थे। एक मकाम पर वालिद माजिद मौलाना नकी अली खां का एतराज़ और जवाब नज़र से गुजरा। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी की ज़िंदगी का नुमायाँ तरीन वसफ़ है। आप अतात के बग़ैर इश्क़ के कायल न थे। आपकी ज़िंदगी का मुतालिया करें तो मालूम होता है कि आप सुन्नत मुस्तफ़ी का बेहतरीन नमूना थे। जब आप मदीना मनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में हाज़िरी के वक़्त दिल में ये तमन्ना उभरी कि काश बेदारी की हालत में भी जमाल जहाँ आरा की ज़ियारत नसीब हो जाए। इस ख्याल ने
उस कदर बेकरार और बेताब किया कि हालत गैर हो गई। इसी आलम में फरमाया, वो सोते लाला झार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं। ये अशआर अहमद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में कबूल हुए और आपकी दिली मुराद भर आई। चनाचे आप हालत बेदारी में हज़रत सैयद आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। इसके रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको विरसे में मिला था, जिसका असर आपकी ज़िंदगी पर नुमायाँ नज़र आता है। आपका उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना सब कुछ सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक होता था। मुमताज़ अदीब जनाब राजा रशीद महमूद इकबाल और अहमद रज़ा लिखते हैं, मुजद्दिद इस्लाम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की ज़िंदगी का तो ख़ास हिस्सा इश्क़ रसूल था। उनके मुखालिफ भी इस बात को तस्लीम करने पर मजबूर हैं, क्यों ना हो जिन्होंने उम्र भर महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की, हज़ूर के मोतरज़ीन का जवाब दिया, कुरान पाक का तर्जुमा किया और तफसीर की, तो हजूर की मोहब्बत उनके शामिल हाल रहे। फ़िक़्ह और हदीस के मौजू पर कलम उठाया तो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलम उठाने की हिम्मत तलब की। आप जब इस्तराहत फरमाते थे तो इस अंदाज से लेटते थे कि महबूब पाक का इस्म ग्रामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाते। आपने वफ़ात से पहले दफन के बारे में ये वसीयत फरमाई कि मेरी कब्र को इतना कुशादा रखना कि जब सरकार मेरी लहद में तशरीफ़ लाएँ तो मैं कब्र में खड़ा हो सकूँ। आला हज़रत बरेलवी के इश्क़ रसूल के तस्करे तो ज़बान इज़्ज़त ख़ास और राम हैं। एक मरतबा आपके किसी अजीज़ ने पूछा, आप दरीदा दहनों की इस दर्जा मुखालफत क्यों फरमाते हैं? आपकी रद्द करने से वो आपको गालियाँ देने लगती हैं। आपने फरमाया, मियाँ मैं भी यही चाहता हूँ कि दशनाम तरास कीना परवरा और बदमज़हब लोग मेरे आका मौला फ़ख्र मौजूदात सैयद सादात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर से ज़हन हटा लें और मुझे जी भर कर कोसें। मेरे लिए यही बहुत बड़ी सआदत है कि ताइफ के तरफदारों को मैंने अपने पीछे लगा लिया है। जब कोई हाज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करने के बाद वापस आता तो आप उससे दरियाफ्त फरमाते कि हजूर की बारगाह आलिया में हाज़िरी दी। वो हाँ कहता तो फ़ौरन उसके कदम चूम लेते। अपनी ज़ाहरी हयात के आखिरी हिस्से में मौलाना इरफान अली बेसलपुरी के नाम एक ख़त में तहरीर फरमाते हैं, वक्त मर करीब है और मेरा दिल हिंद तो हिंद मक्का मौसमा में भी मरने को नहीं चाहता। अपनी ख्वाहिश तो यही है कि मदीना तैयबा में ईमान के साथ मौत और बकी मुबारक में खैर के साथ दफन नसीब हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत के बाद आपके दिल में सादात कराम का नहायत एहतराम था। सादात कराम की अज़मत व कीर को हमेशा अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखते। कसीदा नूर में अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार इस तरह फरमाते हैं, तेरे नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। एक दफ़ा एक सैयद साहब ने आपके दरवाजे पर आकर आवाज़ दी कि दलवाओ सैयद को। ये सुनते ही आप बाहर तशरीफ़ लाए और दीनी अमूर के लिए जो 200 रुपये की रकम रखी हुई थी पेश कर दी और कहा, हजूर हासिल हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सिक्के थे। सैयद साहब कुछ देर उन्हें देखते रहे, फिर एक चवन्नी उठा ली और फरमाया, बस आप ले जाइए। उसी वक़्त आपने खादम से फरमाया कि जब सैयद साहब तशरीफ़ लाएँ तो एक चवन्नी उनकी नज़र कर दिया करो, उन्हें कहने की ज़रूरत न पड़े। नमाज जुमा की अदायगी के बाद आप तशरीफ़ फरमा थे। हाज़रीन का इज्तिमा कसीर था। इतने में एक तालिब इल्म मौलवी नूर मोहम्मद, जो इस वक्त आस्ताना आलिया पर बरगर्ज़ तालीम मुकीम थे, बाहर से करात अली पुकारते हुए सुनाई दिए। उन्हें फ़ौरन बुलाया और फ़ौरन सैयद साहब को इस तरह पुकारते हुए, कभी आपने मुझे भी नाम लेते सुना, फिर ताकीदन फरमाया, आइंदा इसका ख्याल रखना। इसी मजलिस में दौरान गुफ्तगू फरमाया, काजी अगर सैयद को हद लगाए तो ये ख्याल ना करे कि मैं सज़ा दे रहा हूँ, बल्कि ये तसव्वुर करे कि शहज़ादे के पाँव में कीचड़ भर गई है, उसे धो रहा हूँ।
ایک مرتبہ 9-10 برس کی عمر کے ایک لڑکے کو موری خانہ داری کے لیے ملازم رکھا۔ بعد میں علم ہوا کہ یہ سید زادی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی نے گھر والوں کو تاکید کی، خبردار صاحبزادے سے کوئی کام نہ لیا جائے، کیونکہ یہ مخدوم ہیں، جس چیز کی ضرورت ہو پیش کر دی جائے، اور جس تنخواہ کا وعدہ ہوا ہے وہ بطور نذرانہ پیش کی جاتی رہے۔ آپ کی زندگی عشق رسول سے عبارت تھی۔ تمام مسلمانوں کے نام بھی آپ کا یہی پیغام ہے کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو ہے رضا اول گیا۔